بلکہ قسم سے اب کوئی الٹی حرکت نہیں کروں گا. اپنے بزنس پہ فوکس کروں گا, اپنی فیملی کو ٹائم دوں گا, خود بھی خوش رہوں گا اور دوسروں کو بھی خوش رکھوں گا. یہ ہوئی نا بات. بڑے عرصے بعد ایسا لگ رہا ہے میرا پرانا میرا چھوٹا بھائی شاویر واپس آ گیا. شاویر لوٹ آیا سچ میں, اور ان سب چیزوں میں تم سب کا بہت ہاتھ ہے. آئی لو یو. لو یو ٹو. آریان وہ گھر کے سامان کی کچھ لسٹ بنائی ہے, وہ آپ لے آئیے گا. نہیں میں کچھ نہیں لے کے جاؤں گا. یہ شاویر کا کام تھا, وہ پہلے بھی یہی کرتا تھا. نہیں آریان, تم بس اسے لسٹ دے دینا, وہ لے آئے گا. یہ کام آپ کا ہے اور آپ کو ہی کرنا ہوگا. آپ کے پاس جب ٹائم ہو مجھے بتائیے گا, ہم دونوں جا کے سارا سامان لے آئیں گے. تم ضد بہت کرتی ہو. اچھا یہ بتاؤ, وہ سب نے پیسے دے دی؟ ہاں تقریباً, بس شاویر نے پیسے دینے ہیں. وہ جب بھی دے دے گا تو ہمیں مزید سامان لینے جانا ہوگا. کیوں مجھے غصہ کرنے پہ مجبور کرتے ہیں آپ؟ تو پہلے ہی مان لیا کرے جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے میری ضد ماننی ہے. کیونکہ مجھے تم پر غصہ بہت اچھا لگتا ہے. اچھا, تو میں صرف آپ کو غصے میں ہی اچھی لگتی ہوں. میں ہمیشہ آپ کے ساتھ غصے میں ہی بات کروں گی, ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے پھر. اب ایک اچھی سی چائے بنا دو. اچھا چلو, بہت تھکن ہو رہی ہے, تمہارے ساتھ ایک اچھی سی چائے پی. آپ سے 2 باتیں کیا کر لیتی ہوں, آپ مجھے 10 کام سنا دیتے ہیں. ارے 10 نہیں, ایک کام بولا ہے, اور وہ بھی کام نہیں ہے, خواہش ہے. آپ بھی نا بنا کے لاتی ہوں. قسم سے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہو؟ میں تمہارے بارے میں بھی سوچ رہا تھا. میرا اتنا دل چاہ رہا تھا کہ میں تم سے بات کروں, اور دیکھو تمہارا فون آ گیا. کیا سوچ رہے تھے میرے بارے میں؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تم کتنی خوبصورت ہو. فضول باتیں مت کرو. ارے ہاں بھائی فضول باتیں تھوڑی کہہ رہا ہوں, میں تو سچ بول رہا ہوں. اور تمہیں پتہ ہے لڑکیوں کو تو اپنی تعریف سننا کتنا اچھا لگتا ہے. تم تو بڑی کوئی عجیب قسم کی لڑکی ہو. میں عجیب و غریب قسم کی لڑکی ہوں. بس خوش. اچھا, میں نے تمہیں کال کی تھی اپنی آواز سنانے کے لیے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم میری آواز سننے کے لیے بے قرار ہو. ہاں لیکن پلیز کال بیک مت کرنا, کیونکہ فون امی کے پاس ہوگا. ٹھیک ہے. بس تھوڑی دیر کے لیے فون ملا ہے تو میں نے سوچا کہ تم سے بات کر لوں. تو مجھے یہ بتاؤ, مل کب رہی ہو؟ شادی کے بعد. اب تو ملنے کا سوچنا بھی مت. اگر اس بار امی کو پتا چل گیا نا تو پتا ہے بھائی, مذاق کر رہا ہوں. تو مار پڑے گی. اچھا تم ابھی تک آفس میں ہو؟ ہاں یار, میں ابھی تک آفس میں ہوں. تمہاری بہن نے مجھے آفس میں روک کے رکھا ہوا ہے. میں تو بہت تھک گیا ہوں. صبح سے کام کر رہی ہے, مجھے بھی کام دیے میں. اچھا چلو ٹھیک ہے, میں فون رکھتی ہوں. میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ بس اب میں گھر چلا جاؤں. سنو, اس سے پہلے امی کو پتا چل جائے. اور تم بھی گھر جاؤ. تم اپنا پلیز بہت خیال رکھو, اور پلیز آپ ہی کو بھی گھر بھیج دو. ان سے کہو کہ زاویار انہیں بہت یاد کر رہا ہے. میں پھر آپ کا میسج آپ کی بہن کو دے دیتا ہوں. اللہ حافظ. آج صرف اللہ حافظ؟ ہاں تو تم کچھ بھول رہے ہو. I love you. اللہ حافظ. I love you too. جی ابو. تم تینوں کو میں نے ایک ضروری بات بتانی تھی. ہماری جو پرانی شاپ ہے وہ بک رہی ہے بچوں. ہاں تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا سوچ رہے؟ تو یہی سوچ رہا تھا کہ اگر تینوں بھائی راضی ہو جاؤ تو ہم وہ شاپ. یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟
दोबारा खरीद लें। अभी हाँ दिल में ये शक वाली ये रह जाती है कि कभी ये काम कभी वो काम, जैसे वो इस घर में किसी की बीवी नहीं बल्कि कोई कनीज या पार्ट टाइम नौकरानी हो। वो साफ कह देती है कि अगर यही समझा जाता है तो फिर वो इस सब के लिए तैयार नहीं। उसी दौरान एक फ़ोन कॉल आती है। जी सर, वो मेरी बीवी है। कहाँ है सर? उनका हादसा बहुत बुरा हुआ है, वो जनरल अस्पताल में है, आप फौरन आ जाएं। दूसरी तरफ आसिफ साहब के तीनों बेटे मिल बैठकर ये मंसूबा बनाते हैं कि वो दोबारा अपनी दुकान खरीदेंगे और तीनों मिलकर कारोबार नए सिरे से शुरू करेंगे, जिसमें आगे चलकर खूब बरकत भी होगी। मगर उसी खुशी के साए में एक और सदमा आ खड़ा होता है जब शाहमीर को इतला मिलती है कि ऐमान का एक्सीडेंट हो गया है और वो शदीद जख्मी है। इधर फबीहा का सब्र भी जवाब दे जाता है, क्योंकि महक ने घर का सारा काम फबीहा और ईमान पर ही डाल रखा था। बिलाखिर एक दिन फबीहा महक को साफ साफ कह देती है कि आज के बाद वो घर का कोई भी काम नहीं करेगी। इस फैसले के बाद घर का माहौल अक्सर बदल जाता है। महक को पहली बार एहसास होता है कि फबीहा के अंदर बरसों का दबा हवा दिख और थकन किस हद तक जमा हो चुकी थी। फबीहा की आवाज़ में न जद थी न बदतमीजी, बस एक टूटे हुए इंसान की सच्चाई थी जो अब मजीद बोझ उठाने से इनकार कर रही थी। ईमान के हादसे की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। अस्पताल के कॉरिडोर में शाहमीर की आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी जब वो ईमान के बिस्तर के पास खड़ा बार बार डॉक्टर से सवाल कर रहा था। आसिफ साहिब के बेटों की नई शुरुआत की खुशी भी इस सदमे के बास मधम पड़ गई, मगर वो जानते थे कि हालात जैसे भी हों हिम्मत नहीं हारनी। एक तरफ कारोबार को संभालने की जिम्मेदारी थी तो दूसरी तरफ घर के रिश्तों को जोड़ने की आजमाइश। फबीहा के इनकार ने महक को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद घर सिर्फ अहकामात से नहीं, समझौते और एहतराम से चलता है। अब सबके सामने ये सवाल खड़ा था कि क्या ये खानदान टूटते हुए रिश्तों को वक्त पर संभाल पाएगा या फिर खामोशियों के बोझ तले सब कुछ बिखर जाएगा। फबीहा के इनकार के बाद महक कुछ लम्हे खामोश खड़ी रह जाती है। फिर पहली बार उसके लहजे में नरमी आती है और वो समझने की कोशिश करती है कि शायद उसने वाकई हद से ज्यादा बोझ डाल दिया था। इसी दौरान अस्पताल से खबर आती है कि ईमान को होश आ गया है, मगर अभी खतरा टला नहीं, जिस पर शाहमीर टूट सा जाता है और दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहराने लगता है कि वो वक्त पर उसके साथ क्यों न था। घर में आसिफ साहिब के बेटे कारोबार के कागजात समेटते हुए ये तय करते हैं कि अब वो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि एक दूसरे का सहारा भी बनेंगे। फीहा जो अब तक मजबूत बनकर सब सहती रही थी, रात को अकेले में रो पड़ती है, क्योंकि उसके फैसले ने उसे वक्ती सुकून तो दिया था, मगर दिल में एक खौफ भी छोड़ दिया था कि कहीं रिश्ते मजीद खराब ना हो जाएं। अगले दिन महक खुद फबीहा के कमरे में आकर उससे बात करने का फैसला करती है, जबकि दूसरी तरफ शाहमीर अस्पताल में ऐमान का हाथ थामकर वादा करता है कि अगर वो ठीक हो गई तो वो अपनी जिंदगी के फैसले घर वालों के मशवरे और एक नई समझदारी के साथ करेगा। यूं कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है, जहां हर किरदार को अपने रवैयों और फैसलों का सामना करना पड़ता है और आने वाले दिन ये तय करने वाले होते हैं कि यह खानदान बिखरेगा या पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। चंद दिन बाद ईमान की हालत में हल्की सी बेहतरी आती है और डॉक्टर खतरे से बाहर होने की खबर देते हैं, जिस पर शाहमीर पहली बार सजद शक अदा करता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो इसी लम्हे फैसला करता है कि अब वो अपनी जिंदगी में किसी भी रिश्ते को नजरअंदाज नहीं करेगा। अस्पताल से वापसी पर ईमान कमजोर जरूर होती है, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी मजबूती होती है, जैसे इस हादसे ने उसे अंदर से बदल दिया हो। घर आते ही वो महसूस करती है कि फजा पहले जैसी नहीं रही। फबीहा खामोश है, मगर उसकी खामोशी में एहतिजाज भी है, जबकि महक के लहजे में अब वो सख्ती नहीं रही। एक रात सब घर वाले एक ही कमरे में जमा होते हैं, जहां बरसों से दबे हुए शकवे पहली बार खुलकर सामने आते हैं। महक एतराफ़ करती है कि उसने नादानिस्ता तौर पर फबीहा और ईमान पर हद से ज्यादा जिम्मेदारियां डाल दें, और फबीहा साफ कह देती है कि वो रिश्ता
निभाना चाहती है मगर अपनी इज्जत की कीमत पर नहीं। आसिफ साहब के बेटे भी उस मौके पर वेदम करते हैं कि जिस तरह वो कारोबार में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, उसी तरह घर के मामलात में भी सब मिलकर बोझ उठाएंगे। इस बैठक के बाद घर में एक खामोश मगर गहरी तब्दीली आना शुरू हो जाती है, जहां काम बांटा जाता है, बात सुनी जाती है और रिश्तों को दोबारा जोड़ने की एक सच्ची कोशिश जन्म लेती है। मगर सब जानते हैं कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। इसी तब्दीली के बाद दिन आहिस्ता आहिस्ता एक नए अंदाज में ढलने लगते हैं। ईमान अपनी कमजोरी के बावजूद घर के मामलात में राय देने लगती है और शाहमीर हर कदम पर उस की बात को अहमियत देता है, जिससे उसके दिल में एक गहरा इत्मीनान पैदा होता है। फबीहा अब भी घर के कामों से दूर रहती है, मगर उसका रवैया तल्ख नहीं, बल्कि वो जानबूझकर खुद को संभालने और अपनी पहचान दोबारा बनाने की कोशिश कर रही होती है। मैं का उस खामोश फासले को महसूस करती है और एक दिन खुद आगे बढ़कर फबीहा से कहती है कि वो उसे सिर्फ जिम्मेदारियों का हिस्सा नहीं बल्कि घर की इज्जत समझती है और अब हर काम सबकी मर्जी और सलाह से होगा। दूसरी तरफ आसिफ साहब के बेटे दुकान खुलने के पहले दिन मिलकर दुआ करते हैं और जब पहला गाहक आता है तो सबके दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। शाम को जब सब घर वापस आते हैं तो थकन के बावजूद चेहरों पर सुकून होता है, जैसे कई तूफानों के बाद ये खानदान पहली बार एक ही समत में चल रहा हो। मगर दिलों के अंदर छिपे जख्म अभी मुकम्मल भरे नहीं थे और सब जानते थे कि एतमाद को दोबारा मजबूत होने में वक्त लगेगा। मगर कम अज कम अब खामोशी नफरत की नहीं बल्कि समझ और सब्र की अलामत बनने लगी थी। वक्त के साथ साथ ये समझ आना शुरू हो जाती है कि सिर्फ नीयत बदलने से सब कुछ ठीक नहीं होता, बल्कि रवियों को मुस्तकिल बदलना पड़ता है। शाहमीर अब सिर्फ वादों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि अमली तौर पर घर और ईमान दोनों को वक्त देता है। हती की दुकान के मामलात भी वो भाइयों के साथ बाकायदा बैठ कर तय करता है, ताकि कोई एक शख्स दबाव में न आए। ईमान के दिल में अब भी खौफ मौजूद होता है कि कहीं सब कुछ फिर पुरानी डगर पर न लौट जाए, मगर शाहमीर का बदला हुआ अंदाज उसे हौसला देता है। विहा एक दिन महक के साथ बैठकर पहली बार खुलकर बात करती है और बताती है कि मुसलसल नजरअंदाज होना इंसान को अंदर से तोड़ देता है। महक खामोशी से सुनती है और पहली बार दिफा करने के बेजाय अपनी गलतियों को तस्लीम करती है। इस गुफ्तगू के बाद घर में एक नया अफसल तेज होता है कि कोई भी फैसला सबकी मुशावरत के उसी बुनियाद पर आगे बढ़ते हुए एक दिन घर में एक छोटा सा इख्तिलाफ दोबारा सिर उठाता है, मगर इस बार मामला शोर या इल्जाम तक नहीं पहुंचता। शाहमीर खुद सबको बैठाकर बात करने की दरख्वास्त करता है, जिससे एमन के दिल में एक अनजाना सा एतमाद जन्म लेता है कि शायद वाकई सब कुछ बदल रहा है। फबीहा भी पहली बार अपनी राय खुलकर रखती है और कोई उसे टोकता नहीं बल्कि सब तोजा से सुनते हैं, जिससे उसके दिल पर जमी पुरानी ग्रहें आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़ने लगती हैं। महक जो कभी हुक्म देने की आदी थी, अब खुद काम बांटने की तजवीज़ देती है और जब वो फबीहा के साथ मिलकर किचन में खड़ी होती है तो ये मंजर सबके लिए हैरान कौन भी होता है और तसल्ली बख्श भी। दुकान पर आसिफ साहब के बेटों को पहली बड़ी कामयाबी मिलती है। एक अच्छा आर्डर हाथ आता है और वो शुक्राने के नवाफिल अदा करके ये मान लेते हैं कि आजमाइशों ने उन्हें कमज़ोर नहीं बल्कि ज़्यादा समझदार बना दिया है। शाम को जब सब एक साथ खाना खाते हैं तो गुफ्तगू में तलखी नहीं बल्कि मुस्तकबल के मंसूबे होते हैं और ईमान खामोशी से ये महसूस करती है कि शायद उसका हादिसा एक दर्दनाक मोड़ जरूर था, मगर उसी मोड़ ने इस खानदान को वो रास्ता दिखा दिया जिस पर चलकर रिश्ते बिखरने के बजाय जुड़ सकते हैं। इन्हीं दिनों ईमान की तबीयत मजीद संभलने लगती है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रोज़मर्रा जिंदगी की तरफ वापस आने लगती है, मगर इस बार उसके अंदाज में पहले जैसी खामोशी नहीं होती। वह शाहमीर के साथ बैठकर अपने खौफ और खदशात खुलकर बयान करती है और शाहमीर न सिर्फ सुनता है बल्कि पहली बार उसकी बातों पर अमल भी करता दिखाई देता है, जिससे ऐमन के दिल में एक नया एतमाद जड़ पकड़ने लगता है।
फबीहा भी अब खुद को अलग थलग महसूस नहीं करती। एक दिन वो सबके लिए चाय बनाती है, मगर किसी दबाव के तहत नहीं बल्कि अपनी मर्जी से, और यही फर्क महक को अंदर तक हिला देता है। महक दिल ही दिल में यह मान लेती है कि इज्जत दी जाए तो जिम्मेदारियां खुद ब खुद बांटी जाने लगती हैं। दुकान पर काम बढ़ने के साथ साथ आसिफ साहिब के बेटे एक दूसरे की कदर करने लगते हैं, और जब पहला महीना मुनाफे के साथ मुकम्मल होता है तो वो आसिफ साहब की तस्वीर के सामने खड़े होकर अहद करते हैं कि अब लालच और अना को कभी अपने दरमियान नहीं आने देंगे। रात को घर में सुनाटा नहीं बल्कि सुकून होता है, और ईमान खिड़की के पास खड़ी ये सोचती है कि जिंदगी ने उसे तकलीफ देकर बहुत कुछ छीना जरूर, मगर इसी तकलीफ ने उसे वो मकाम भी दिया जहां उसकी आवाज़ सुनी जाने लगी है, और शायद यही उस कहानी की सबसे बड़ी जीत है। ईमान खिड़की के पास खड़ी नहीं सोचों में गुम होती है कि अचानक शाहमीर आकर उसके पास खड़ा हो जाता है, और पहली बार वो खुद गुफ्तगू का आगाज करता है। वह ऐमान से कहता है कि इस हादसे ने उसे ये एहसास दिलाया है कि वो हमेशा घर और रिश्तों को खुद ब खुद चलता हुआ समझता रहा, मगर हकीकत में हर रिश्ते को वक्त, तवज्जो और इज्जत की ज़रूरत होती है। ईमान खामोशी से उसकी बात सुनती है, फिर आहिस्ता से कहती है कि वो हमदर्दी नहीं बल्कि मुस्तकिल तब्दीली चाहती है। ऐसे वादे जो सिर्फ मुश्किल वक्त में नहीं बल्कि आम दिनों में भी नजर आए। शाहमीर उस बात पर सर हिला देता है और दिल ही दिल में तय कर लेता है कि अब वो किसी फैसले में ईमान को नजरअंदाज नहीं करेगा। दूसरी तरफ फबीहा के अंदर भी एक अजीब सी तब्दीली आ चुकी होती है। वो अब खुद को मजलूम साबित करने के बजाय अपनी हुदूद मुतय्यन करना सीख रही होती है। महक एक दिन सबके सामने यह ऐलान करती है कि अब घर में किसी पर भी जबरदस्ती, क्योंकि वो पहली बार खुद को इस घर का पक्ष ने बल्कि फर्द महसूस करती है। इधर दुकान पर आसिफ साहब के बेटे दिन रात मेहनत में लगे होते हैं, मगर अब उनके दरमियान मुकाबला नहीं बल्कि तावन होता है। वो एक दूसरे की कमजोरी को छिपाने के बजाय संभालने लगते हैं, जिसका असर उनके कारोबार पर भी नजर आने लगता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं घर के माहौल में एक ठहरा हुआ सुकून आ जाता है, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि सब जानते हैं कि असल आजमाइश उस वक्त आएगी जब हालात दोबारा सख्त होंगे। फर्क उस सिर्फ इतना होता है कि अब एक खानदान बिखरने के बजाय एक दूसरे का हाथ थामने के लिए तैयार नजर आता है, और यही तैयारी उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली होती है। ईमान के संभलने के बाद घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता नरमी इख्तियार करने लगता है। शामिर अब हर फैसले में ईमान की राय लेता है और उसके खौफ और खदशात को संजीदगी से समझता है, जिससे ईमान के दिल में एतमाद और सुकून पैदा होता है। वो अब खुद को कमज़ोर महसूस नहीं करती, बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत और मुहतात बन जाती है, क्योंकि उसने सीख लिया है कि ज़िंदगी में मुश्किलात से लड़ने के लिए सिर्फ सब्र काफ़ी नहीं, बल्कि अपनी बात कहने और अपनी हुदूद मुतय्यन करने की भी ज़रूरत है। फबीहा भी आहिस्ता आहिस्ता अपने रवैये में तब्दीली लाती है। वो अब घर के कामों में सिर्फ अपनी मर्जी से हिस्सा लेती है और अपनी थिकन और एहसासात का एहतराम कराती है, जिससे महक भी समझती है कि इज्जत देने से जिम्मेदारी खुद ब खुद बांटी जा सकती है। दुकान पर आसिफ साहब के बेटे भी महज मुनाफे की फिक्र करने के बजाय एक दूसरे के साथ तावन करने लगते हैं, और जब कोई गलती होती है तो इसे इल्जाम देने के बजाय हल तलाश करने पर तवज्जो देते हैं। दिन गुजरते हैं और घर में पहले जैसी तलखी और सख्ती की बजाय समझौते, बातचीत और सब्र का माहौल पैदा होता है। सबके दिलों में यह एहसास मजबूत हो जाता है कि रिश्ते सिर्फ हुक्म और दबाव से नहीं जीते जाते, बल्कि इज्जत, एतमाद और मोहब्बत से जीते जाते हैं। मगर सब जानते हैं कि ज़िंदगी में मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई हैं, बस अब सब ने ये अहद कर लिया है कि हर आजमाइश में वो एक दूसरे का सहारा बनेंगे, और यही तैयारी उनके मुस्तकबल के लिए सबसे बड़ी ताकत है। वक्त गुजरने के साथ घर में एक नई रोशनी दिखाई देने लगती है। ईमान की सेहत मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई, मगर उसकी सरगर्मियों में तवाज़ुन आ गया है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने फैसले खुद लेने लगती है, जिससे शाहमीर और फबीहा दोनों को ये एहसास होता है कि वो अब सिर्फ महताज नहीं बल्कि अपने हक और जिम्मेदारी के साथ अपना किरदार अदा कर सकती है।
फबीहा अब घर के कामों में हिस्सा लेती है, मगर इस पार दबाव या ज़बरदस्ती के बगैर, बल्कि अपने एहतराम और अपनी मर्जी के साथ, जिससे महक को ये समझ आ जाता है कि इजाज़त देने से रिश्तों में खुद ब खुद सुकून पैदा होता है। आसिफ साहब के बेटे दुकान के काम में एक दूसरे के साथ मुकम्मल तावन करने लगते हैं, और जब किसी काम में गलती होती है तो इल्ज़ाम तराशी की बजाय मसले का हल निकालने पर तवज्जो देते हैं, जिससे कारोबार में भी तसलसल और बेहतरी आती है। शाम के वक्त सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और बातचीत में तलखी की बजाय हौसला और समझौता नजर आता है, जिससे घर का माहौल पहले से ज्यादा गर्म और दोस्ताना हो जाता है। हर किरदार के दिल में ये शऊर पैदा होता है कि रिश्ते सिर्फ हदायत और जिम्मेदारियों से नहीं जीते जाते, बल्कि इज्जत, इत्मीनान और मोहब्बत के जरिए मजबूत होते हैं। मगर सब जानते हैं कि जिंदगी की आजमाइशें ख़त्म नहीं हुई हैं। वक्त के साथ साथ ये ख़ानदान एक नए मरहले में दाखिल हो जाता है, जहां हर फर्द ने अपने अंदर खुद एहतिसाबी शुरू कर दी है। ईमान अब पहले जैसी खौफजदा और महतात नहीं रही। वो न सिर्फ अपनी बात कहती है, बल्कि अपने फैसलों में फ़ाल हिस्सा लेती है, और शाहमीर उसकी हर राय को संजीदगी से लेता है। शाहमीर के दिल में भी तब्दीली आ चुकी है। वो अब सिर्फ हुक्म देने वाला नहीं, बल्कि सुनने और समझने वाला भी बन गया है, और वो जान चुका है कि रिश्तों की मजबूती के लिए महद मर्द या जिम्मेदारी काफ़ी नहीं, बल्कि इज्जत, इत्मीनान और एहतराम की ज़रूरत है। फबीहा भी अब घर के कामों में हिस्सा लेती है, मगर ये काम किसी दबाव या ज़बरदस्ती के तहत नहीं, बल्कि अपनी मर्जी, इज्जत और अपनी हुदूद का ख्याल रखते हुए करती है। इस तब्दीली ने महक को भी मुतासिर किया, और उसे एहसास हुआ कि अगर हर फर्द की इज्जत और राय की कदर की जाए तो घर के मामलात में खुद ब खुद तवाज़ुन और सुकून पैदा हो जाता है। इधर आसिफ साहब के बेटे भी कारोबार में मुकम्मल तावन करने लगते हैं। वे एक दूसरे की खामियों को छुपाने या इल्ज़ाम देने की बजाय हल तलाश करने पर तवज्जो देते हैं, और उसी रवैये की वजह से दुकान में काम की रफ्तार बढ़ती है और मुनाफे में इजाफा होता है। शाम के वक्त सब खानदान के लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, और गुफ्तगू में तलखी, इल्ज़ाम या सख्ती की बजाय हौसला अफजाई, समझौता और तावन नजर आता है। हर किरदार के दिल में ये शऊर मजबूत हो जाता है कि रिश्ते सिर्फ हुक्म, जिम्मेदारी या मफाद के लिए नहीं, बल्कि इज्जत, मोहब्बत, इत्मीनान और जज्बात की पहचान से मजबूत होते हैं। हालांकि ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म नहीं हुए, मगर अब हर फर्द के पास हिम्मत, समझदारी और एक दूसरे का सहारा मौजूद है। ये ख़ानदान अब एक दूसरे की गलतियों या कमज़ोरियों को सज़ा देने के बजाय उन्हें संभालने और सीखने के जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस तरह कहानी एक नए मजबूत मरहले पर आ जाती है, जहाँ न सिर्फ रिश्ते जड़ते हैं, बल्कि हर किरदार की शख्सियत में पख्तगी और शऊर भी आ चुका होता है, जो आने वाले हर तूफान में उनका असल सहारा और ताकत बनने वाला है। वक्त के साथ साथ ये ख़ानदान एक नहायत हसास मगर मजबूत मरहले में दाखिल हो जाता है, जहाँ हर किरदार ने अपनी सूची, रवैये और जज्बात को पहले से ज़्यादा संजीदगी से समझना शुरू कर दिया है। एमन अब मुकम्मल तौर पर कमज़ोर या खौफजदा नहीं रही। वो अपनी बात खुलकर रखती है, अपने जज्बात को छुपाने के बजाय वाज़ेह करती है, और शाहमीर के साथ मिलकर अपने मुस्तकबल के फ़ैसलों में हिस्सा लेती है। शाहमीर भी अब सिर्फ हुक्म देने वाला नहीं, बल्कि एक सुनने वाला, समझने वाला और रहनुमाई फराहम करने वाला बन चुका है। उसे एहसास हो गया है कि रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारी या मोहब्बत से नहीं, बल्कि इज्जत, एतमाद, बर्दाश्त और एक दूसरे की राय को अहमियत देने से जीते जाते हैं। फबीहा भी अब घर के कामों में हिस्सा लेती है, मगर यह हिस्सादारी किसी दबाव या खौफ की वजह से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी, अपनी इज्जत और अपनी हुदूद के एहतराम के साथ होती है। इस तब्दीली ने महक के दिल में भी एक नरमी पैदा कर दी है। वो अब हुक्म देने के बजाय तावन और समझौते की राह इख्तियार करती है, और घर के माहौल में पहले जैसी तलखी और सख्ती की जगह सुकून, हमदर्दी और बातचीत ने ले ली है। दूसरी तरफ आसिफ साहिब के बेटे दुकान के काम में एक दूसरे के साथ मुकम्मल तावन करने लगते हैं। वो किसी भी गलती या नाकामी की सूरत में इल्ज़ाम तराशी के बजाय मसले के हल पर तवज्जो देते हैं, जिससे न सिर्फ कारोबार में तसलसल और तरक्की आती है, बल्कि
भाइयों के ताल्लुकात में भी मजबूती, घर और खानदान के माहौल में आहिस्ता आहिस्ता एक नई रूह फूंक दी जाती है। ईमान अब न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बेहतर महसूस करती है, बल्कि उसके अंदर एतिमाद और हौसले की नई रोशनी पैदा हो गई है। वो अब किसी खौफ या दबाव के बगैर अपने जज्बात, खदशात और राय खुलकर बयान करती है, और शाहमीर उसे न सिर्फ सुनता है बल्कि इसकी हर बात को अहमियत देता है। शाहमीर के दिल में भी तब्दीली आ चुकी है। वो अब सिर्फ हुक्म देने वाला नहीं बल्कि एक समझदार रहनुमा, सुनने वाला और ताउन करने वाला बन चुका है। उसने सीख लिया है कि रिश्ते महज ज़िम्मा दारी या फर्जी से नहीं जीते जाते, बल्कि इज्जत, एतमाद, बर्दाश्त और एक दूसरे की राय को अहमियत देने से मजबूत होते हैं। फबीहा भी अब घर के कामों में हिस्सा लेती है, मगर ये हिस्सादारी दबाव या मजबूरन नहीं बल्कि अपनी मर्जी, इज़्ज़त और हुदूद के एहतराम के साथ होती है, जिससे घर के माहौल में पहले जैसी तलखी और सख्ती की जगह सुकून और हम आहंगी ने ले ली है। मैक भी अब हुक्म देने के बजाय तावन और समझौते की तरफ माइल हो गई है, और वो हर फर्द की राय को अहमियत देना सीख गई है। इधर आसिफ साहब के बेटे दुकान के मामलात में मुकम्मल तावन करने लगते हैं। वो एक दूसरे की कमजोरियों को छुपाने या इल्ज़ाम देने के बजाय मसले का हल तलाश करने में वक्त और तवानाई सर्फ करते हैं, जिससे न सिर्फ कारोबार में बेहतरी आती है बल्कि भाइयों के ताल्लुकात भी मजबूत और पख्ता हो जाते हैं। शाम के वक्त जब सब खानदान के लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो गुफ्तगू में तलखी, इल्ज़ाम या सख्ती की बजाय हौसला अफजाई, समझौता और एक दूसरे के जज्बात की कदर नजर आती है। हर फर्द के दिल में ये शूर मजबूत हो जाता है कि रिश्ते सिर्फ हुक्म या मफाद के लिए नहीं बल्कि इज्जत, एतमाद, मोहब्बत और समझ बूझ से कायम होते हैं। अगरचे ज़िंदगी की आजमाइशें ख़त्म नहीं हुई हैं, मगर अब हर फर्द के पास हिम्मत, शऊर और एक दूसरे का सहारा मौजूद है। ये ख़ानदान अब हर इम्तिहान के लिए तैयार है, हर मुश्किल का सामना मुतहद होकर करेगा और अपनी गलतियों से सीख कर एक मजबूत बुनियाद पर आगे बढ़ेगा। इस तरह कहानी एक नए मजबूत मरहले पर आ जाती है, जहां हर किरदार ने अपने अंदर पुख्तगी पैदा की, रिश्तों में शफकत और एतिमाद पैदा किया, और मुस्तकबल के लिए एक रोशन, पुरअमन और मजबूत रास्ता वज़ा किया है। वक्त के साथ साथ ये ख़ानदान एक नए अज़्म और यकजाती के मरहले में दाखिल हो जाता है। ईमान की सेहत पहले से बेहतर होती है, लेकिन सबसे अहम तब्दीली उसके दिलो दिमाग में आती है। वो अब खौफ और हचकचाहट के बगैर अपनी राय, एहसासात और ज़रूरियात को खुलकर बयान करती है, और शाहमीर हर बात को न सिर्फ सुनता है बल्कि उस पर अमल करने की कोशिश करता है। शाहमीर के दिल व दिमाग में भी एक गहरा शूर पैदा होता है कि रिश्तों को सिर्फ मोहब्बत या जिम्मेदारी के जज्बे से नहीं बल्कि इज्जत, एतमाद, बर्दाश्त और एहतराम से मजबूत किया जा सकता है। फबीहा की सोच और रवैया भी बदल गया है। वो अब घर के कामों में हिस्सा लेती है, मगर ये हिस्सेदारी किसी दबाव, हुक्म या खौफ के तहत नहीं बल्कि अपनी मर्जी, अपनी इज्जत और अपनी हुदूद के एहतराम के साथ होती है, जिससे घर के माहौल में सुकून, हम-आहंगी और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम हो जाती है। मैक भी अब सिर्फ हुक्म देने वाली नहीं बल्कि तावन और समझौते की तरफ माइल हो गई है, और वो हर फर्द की राय को अहमियत देने की आदी हो गई है। दूसरी तरफ आसिफ साहब के बेटे दुकान के कारोबार में एक दूसरे के साथ मुकम्मल तावन करने लगते हैं। वो किसी गलती या नाकामी की सूरत में इल्ज़ाम देने की बजाय मसले का हल तलाश। घरेलू माहौल में आने वाली ये तब्दीली अब मुस्तकिल और गहरी नजर आने लगी है। ईमान की सेहत में बेहतरी के साथ साथ उसकी शख्सियत में भी निखार आ गया है। वो अब खौफ और हचकिचाहट के बगैर अपने जज्बात, ज़रूरियात और ख़यालात खुलकर बयान करती है, और शाहमीर हर बात को समझकर संभालने लगता है। शाहमीर भी अब सिर्फ हुक्म देने वाला नहीं बल्कि एक सुनने वाला, समझने वाला और रिश्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ाल किरदार अदा करने वाला बन चुका है। उसने ये सबक सीखा कि रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारी, मोहब्बत या फ़र्ज़ के तहत नहीं बल्कि इज़्ज़त, एतिमाद, बर्दाश्त और एक दूसरे की राय की कदर करने से मजबूत होते हैं। फबीहा के रवैये में भी तब्दीली आ चुकी है। वो अब घर के कामों में हिस्सा लेती है, मगर ये हिस्सादारी दबाव या ज़बरदस्ती के बगैर अपनी मर्जी, इज़्ज़त और हुदूद के एहतराम के साथ होती है, जिससे घर में सुकून, हम आहंगी और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम हो गई है। मैक भी अब हुक्म देने के
बजाय समझौते और तावन की तरफ माइल हो गई है और वो हर फर्द की राय की अहमियत को तस्लीम करने लगी है। दुकान के मामले में आसिफ साहब के बेटे भी एक दूसरे के साथ मुकम्मल तावन करने लगे हैं। वो अब किसी भी गलती या नाकामी में इल्ज़ाम देने के बजाय मसले के हल और बेहतर मुस्तकबल पर तवज्जो देते हैं, जिससे न सिर्फ कारोबार में तरक्की और मुनाफे बढ़ता है बल्कि भाइयों के ताल्लुकात में एतमाद और भाईचारा भी मजबूत होता है। शाम के वक्त सब खानदान के अफराद एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और गुफ्तगू में तलखी या सख्ती की बजाय हमदर्दी, एहतराम और एक दूसरे की कदर नजर आती है। हर फर्द के दिल में ये शूर पैदा हो गया है कि रिश्ते सिर्फ हुक्म, फर्द या मफाद के लिए नहीं बल्कि इज्जत, मोहब्बत, इर्तिमाद और जज्बात की समझ बूझ से कायम होते हैं। जिंदगी की आजमाइशें ख़त्म नहीं हुई हैं, मगर अब हर फर्द के पास हिम्मत, शऊर और एक दूसरे का सहारा मौजूद है। ये खानदान अब हर इम्तिहान का सामना मुत्तहद होकर करेगा और हर मुश्किल लम्हे में रिश्तों की मजबूती, सब्र और तावन उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। इस तरह कहानी एक ऐसे मरहले पर पहुंच जाती है जहां हर किरदार ने अपने अंदर पुख्तगी पैदा की, रिश्तों में एहतराम और मोहब्बत को फ़रोग दिया और मुस्तकबल के लिए एक मजबूत, प्रामन और मुस्तहकम बुनियाद तैयार की। वक्त के साथ ये खानदान एक नई मजबूती और हम आंगी के मरहले में दाखिल हो जाता है। ईमान अब न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बेहतर महसूस करती है बल्कि उसके अंदर एतमाद और हौसला भी पैदा हो गया है। वो अब किसी दबाव या खौफ के बगैर अपने जज्बात, ख्यालात और ज़रूरियात का इजहार करती है और शामिर हर बात को न सिर्फ सुनता है बल्कि इस पर अमल करने और मुनासिब फैसला करने की कोशिश करता है। शाहमीर ने भी यह समझ लिया है कि रिश्ते सिर्फ मोहब्बत या फ़र्ज के जज्बे से नहीं बल्कि इज्जत, एतमाद, बर्दाश्त और एक दूसरे की राय को सुनने और अहमियत देने से कायम और मजबूत होते हैं। फबीहा भी अब घर के कामों में हिस्सा लेती है, मगर यह हिस्सा दारी किसी ज़बरदस्ती या खौफ के तहत नहीं बल्कि अपनी मर्जी, इज़्ज़त और हुदूद के एहतराम के साथ होती है, जिससे घर के माहौल में पहले जैसी तलखी और कशीदगी की बजाय सुकून, मोहब्बत और हम आहंगी पैदा हो जाती है। मैक भी अब हुक्म देने के बजाय तावन और समझौते की तरफ माइल हो गई है और वो हर फर्द की राय की कदर करने लगी है, जिससे घर के ताल्लुकात में इर्तिमाद और एहतराम की फ़ज़ा कायम होती है। दूसरे के साथ मुकम्मल तावन करने लगते हैं। वे अब किसी गलती या नाकामी पर इल्ज़ाम देने की बजाय हल तलाश करने और बेहतरीन नताइज के हुसूल पर तवज्जो देते हैं। जिस वक्त के साथ साथ ये ख़ानदान एक नए और मजबूत मरहले में दाखिल हो जाता है, जहां हर किरदार ने अपनी सूची, रवैये और जज्बात में गहरी तब्दीली लाना शुरू कर दी है। ईमान अब न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बेहतर महसूस करती है बल्कि उसकी शख्सियत में भी पुख्तगी और हौसले की रोशनी नजर आती है। वो अब खौफ या हचकिचाहट के बगैर अपने जज्बात, ज़रूरियात और ख़यालात बयान करती है और शाहमीर न सिर्फ सुनता है बल्कि उसकी हर बात पर गौर करके अमल करने की कोशिश करता है। शाहमीर के दिल में भी तब्दीली आ चुकी है। वो अब सिर्फ हुक्म देने वाला नहीं बल्कि सुनने वाला, समझने वाला और रिश्तों की मजबूती के लिए अमली इक़दामात करने वाला बन चुका है। उसने ये सीखा है कि रिश्ते सिर्फ मोहब्बत, फ़र्द या जिम्मेदारी के जज्बे से कायम नहीं रहते बल्कि इज़्ज़त, एतमाद, बर्दाश्त और एक दूसरे की राय को अहमियत देने से मजबूत होते हैं। फबीहा का रवैया भी बदल चुका है। वो अब घर के कामों में हिस्सा लेती है, मगर यह हिस्सादारी किसी दबाव या ज़बरदस्ती के बगैर अपनी मर्जी, इज्जत और हुदूद के एहतराम के साथ होती है। इस तब्दीली से घर के माहौल में पहले जैसी तलखी, सख्ती और कशीदगी की बजाय सुकून, हम आहंगी और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम हो गई है। मैक भी अब हुक्म देने के बजाय तावन और समझौते की तरफ माइल हो गई है और हर फर्द की राय की कदर करने लगी है, जिससे घर के ताल्लुकात में एतमाद और एहतराम की फ़ज़ा मजबूत होती है। दुकान के मामले में आसिफ साहब के बेटे भी एक दूसरे के साथ मुकम्मल तावन करने लगे हैं। वो अब किसी भी गलती या नाकामी पर इल्ज़ाम तराशी की बजाय मसले का हल तलाश करने और बेहतरीन नताइज के हुसूल पर तवज्जो देते हैं, जिससे न सिर्फ कारोबार में तरक्की और मुनाफे आता है बल्कि भाइयों के ताल्लुकात में भी मजबूती और भाईचारा पैदा होता है।
शाम के वक्त जब सब खानदान के अफराद एक साथ खाने के लिए बैठते हैं तो गुफ्तगू में तलखी, अज़्ज़ाम या सख्ती की बजाय हमदर्दी, हौसला अफजाई और एक दूसरे की कदर का इजहार नजर आता है। हर फर्द के दिल में ये शूर पैदा हो गया है कि रिश्ते सिर्फ हुक्म, फर्द या मफाद के लिए नहीं बल्कि इज्जत, महब्बत, एतमाद और जज्बात की समझ बोझ से कायम और मजबूत होते हैं। जिंदगी की आजमाइशें खत्म नहीं हुई हैं, मगर अब हर फर्द के पास हिम्मत, शऊर और एक दूसरे का सहारा मौजूद है। ये खानदान हर मुश्किल और इम्तिहान का सामना मुत्तहिद होकर करेगा और हर तूफान में रिश्तों की मजबूती, सब्र और तावन इनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। कहानी इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार ने अपनी गलतियों और कमजोरियों का इदराक कर लिया, रवैयों में तब्दीली लाए और मुस्तकबल के लिए एक मजबूत, पुरअमन और मुस्तहकम बुनियाद कायम की, जो आने वाले हर लम्हे में उनके लिए रहनुमाई, तहफ़्फ़ुज़ और ताकत का जरिया बनेगी। घर के माहौल में आने वाली ये मुसब्बत तब्दीली अब न सिर्फ मुस्तकिल है बल्कि हर किरदार के रवैये और सोच में गहरी जड़ें डाल चुकी है। ईमान अब सिर्फ सेहतियाब नहीं बल्कि एक मजबूत, खुद मुख्तार और बाशऊर शख्सियत के तौर पर सामने आ रही है। वो अब खौफ या हचकिचाहट के बगैर अपने जज्बात, ज़रूरियात और ख़यालात का इजहार करती है और शाहमीर न सिर्फ स्वतः है बल्कि अमली तौर पर भी उसकी राय और एहसासात का एहतराम करता है। शाहमीर के दिल व दिमाग में भी ये शऊर पैदा हो गया है कि रिश्ते महज मोहब्बत, फ़र्द या जिम्मेदारी से कायम नहीं रहते बल्कि इज्जत, एतमाद, बर्दाश्त और एक दूसरे की राय को संजीदगी से लेने से मजबूत और दिरपा होते हैं। फबीहा की शख्सियत में भी वाज़ेह निखार आ चुका है। वो अब घर के कामों में हिस्सा लेती है, मगर यह हिस्सादारी किसी दबाव या मजबूर। अब यह ख़ानदान एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका है जहां हर फर्द ने अपनी ज़िंदगी, सोच और रवैयों में पख्तगी पैदा कर ली है। ईमान अब सिर्फ सेहतियाब नहीं रही बल्कि एक मजबूत, बशऊर और खुद मुख्तार शख्सियत के तौर पर घर में अपना मकामा कायम कर रही है। वही अब अपने जज्बात, खौफ, ख्वाहिशात और ज़रूरियात को बगैर किसी हचकिचाहट के बयान करती है और शाहमीर न सिर्फ उसे सुनता है बल्कि हर बात पर अमल करने और मुनासिब फैसले करने की कोशिश करता है। शाहमीर ने यह समझ लिया है कि रिश्ते सिर्फ मोहब्बत, फ़र्द या जिम्मेदारी से नहीं चलते बल्कि इज़्ज़त, एतमाद, बर्दाश्त और एक दूसरे की राय की कदर करने से मजबूत और दिरपा होते हैं। फबीहा भी अब घर के कामों में हिस्सा लेती है, मगर ये हिस्सादारी किसी दबाव या ज़बरदस्ती के बगैर अपनी मर्जी और इज्जत के साथ होती है। उस रवैये की वजह से घर में पहले जैसी तलखी, कशीदगी और नफरत की जगह सुकून, हमाहंगी और मोहब्बत ने ले ली है। महक भी अब हुक्म देने की बजाय तावन, समझौते और हर फर्द की राय की अहमियत पर तवज्जो देने वाली बन गई है, जिससे घर के ताल्लुकात में पहले से ज़्यादा एतमाद, एहतराम और शफकत पैदा हुई है। दुकान के मामले में आसिफ साहब के बेटे भी मुकम्मल तावन और समझौते के साथ काम करने लगते हैं। वो किसी भी गलती या नाकामी पर इल्ज़ाम देने के बजाय मसले के हल और बेहतरी पर तवज्जो देते हैं, जिससे न सिर्फ कारोबार में तरक्की और मुनाफे आता है बल्कि भाइयों के ताल्लुकात में भी मजबूती और भाईचारा बढ़ता है। शाम के